why we are studying this unit. What is my intention, students? आप कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले ये क्यों यहाँ पे आया, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये क्लियर होना very important. Okay, why this unit is here? What is the intention of putting this unit here? What exactly we are going to do in this particular unit? First, let me clarify. ये यूनिट में हम क्या करने वाले हैं? कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे जरूरत रहता है. वी कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल. Okay, to manage their day-to-day business, any company needs certain fund or money or capital. That capital we call it as working capital. Okay, you may be already knowing about the share capital, dear students. Please understand, share capital of the company cannot be utilized for day-to-day expenses. Why so? Share capital of the company is there for longer duration. और जो शेयर कैपिटल रहता है स्टूडेंट्स, दैट शेयर कैपिटल कंपनी कैन यूज to buy certain long-term assets. Now, question is, which are the long-term assets? Long-term assets are nothing but those fixed assets company invest. For example, company invest in machinery, company invest in building, company goes for buying some furniture for their companies, right? So all these we call it as long-term assets. And ये long-term assets के लिए पैसा कौन सा यूज करते हैं बच्चों? जो शेयर कैपिटल से रेज किया हुआ रहता है. Okay, so that money now cannot be utilized for any other purpose. So company business कैसे चलाती है? Then raw material कैसे खरीदता है ना? अपना एम्प्लॉयज को सैलरी कहाँ से देता है? रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग कैसे करता है? राइट, रेंट कैसे पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैसे पे करता है? सो दैट क्वेश्चन विल अराइज, बिकॉज फॉर दैट दे कैन नॉट टच शेयर कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? टू मैनेज दैट डे टू डे एक्सपेंसेस, कंपनी यूज देयर वर्किंग कैपिटल. Okay, now a question again will come, what is this working capital then? Very simple, dear students. Check out the screen. A difference between, okay, a difference between current assets and current liabilities is nothing but working capital. Hope all of you following. What is the difference between current asset and current liability? A difference पहले पता चलना है तो first we have to concentrate. First we should know what are all current assets, what are all current liabilities. Okay, what is the meaning of current asset? You know the examples of current asset, right? Can anyone give me the meaning of current asset? सबको clear हो गया. Now coming to working capital, listen carefully everyone. Okay, what is a working capital? The difference between the current asset and current liability, we call it as working capital. Now a question will arise in mind, why we are calling this as working capital? Okay, second, if you see the second definition, what I have written in the second definition, excess of current assets over current liability, we call it as working capital. What is excess of current asset? I'll give you one example. For example, if you having in the company 5 lakh worth of current assets, okay? If you are having 5 lakh worth of current assets, and in the same company, if you are having 4 lakh worth of current liabilities मतलब क्या है? As Lokesh said, 4 lakh worth of current liability you have to pay off now, and 5 lakh worth of current asset है जो आपको पैसा आने वाला है. So जो 5 लाख आने वाला है बच्चों, वो 5 लाख से आप 4 लाख क्या करोगे? पे ऑफ करोगे, क्योंकि आपको उतना पे करना है. So पे ऑफ करने के बाद भी मेरे पास कितना बच गया स्टूडेंट्स? 1 लाख बच गया. This 1 lakh I will call it as working capital. Now you understood what is working capital. Okay, now why I am telling this 1 lakh as working capital? Go through the third point I have written. Okay, third point on the screen. Capital of the business used in day-to-day activities. अभी मेरा ये 1 lakh
एक्सेस है, मैं इसको क्या करूंगी बच्चों, मेरा जो डे टू डे एक्टिविटीज है, रेंट पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है कंपनी में, उसके लिए मैं ये 1 लाख यूज करूंगी. Hope now what is working capital clear, dear students? What is working capital? Whenever there is excess of current assets over current liability, we call it as working capital. Companies should have more of current asset than current liability. Why they should have more of current asset than current liability? Because जो वो extra पैसा है, वो पैसे को कहाँ यूज करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे. दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. सो होप दैट इज क्लियर स्टूडेंट. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल सबको क्लियर हो गया. ओके, इसके लिए मैंने आपको समझाया पहले करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है. व्हाट आर करंट एसेट्स, जिससे हमें पैसा आना है, उतना पैसा आने वाला है, वो भी थोड़े टाइम में आने वाला है. कस्टमर्स हमें पे करेंगे, डेटर्स है ना, कस्टमर्स हमें पे करेंगे, और बिल्स रिसीवेबल है जिसका पैसे आने वाला है, कैश तो अपना हाथ में ऑलरेडी है. सो ये सारे अपना करंट एसेट हो गया, जिससे हम करंट लायबिलिटीज पे करेंगे. करंट लायबिलिटीज क्या होता है, जो बिल्स अपना सर पे खड़ा है, जो हमें पे करना है, वो सारे हम पे कर देंगे, और बचा हुआ पैसे को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. होप दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. नाउ लेट अस मूव ऑन. Types of working capital. Working capital maybe there are few types. Let us understand one by one. First type I have written gross working capital. Please write it down whenever we are I am showing some new things to you. It should be there in your notebook. Okay. Gross working capital, net working capital. Okay. First let us understand what is gross working capital. So what is a gross working capital? Gross working capital, whenever we just take total current assets together. हाँ स्टूडेंट्स, टोटल करंट एसेट्स को साथ में जब लेते हैं ना, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. कंपनी में जो टोटल करंट एसेट्स है, समझो 5 लाख, लास्ट एग्जांपल में मैंने 5 लाख एसेट बोला था, वो 5 लाख एसेट मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है. ओके, नाउ जब वो टोटल करंट एसेट से मैंने करंट, मेरा टोटल करंट लायबिलिटी माइनस किया, तो बचा हुआ फिगर जो आता है उसको हम, मैं क्या बोलूंगी, नेट वर्किंग कैपिटल. So what is a net working capital? The difference between current asset and current liability, we call it as net working capital. Okay, so सिर्फ जब current assets को लेते हैं हम उसको gross working capital बोलते हैं, वो टोटल करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो हम क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल. होप दैट फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर स्टूडेंट्स. Gross and net working capital. Now the second one, let us move on. What is the second type of working capital? Permanent and temporary working capital. Please understand this, very interesting. Okay, bachcho, I will give you one example. If you take, for example, listen carefully. If you take an ice cream manufacturing industry or a company, okay, ice cream manufacturing company. आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को थ्रू आउट द ईयर डिमांड आइसक्रीम का रहता है कि नहीं रहता है, थ्रू आउट द ईयर. मतलब इफ यू टेक एनी सीजन, रेनी सीजन हो या समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, आइसक्रीम का डिमांड रहता है. यस और नो? टेल मी फास्ट, एनीवन ऑफ यू. यस, रहता है. करेक्ट. ओके, हाँ, थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि हम बारिश में भी एंजॉय करते हैं आइसक्रीम, विंटर में भी आइसक्रीम खाते हैं कुछ कुछ लोग, राइट, समर में भी आइसक्रीम खाते हैं, समर में तो खाते ही है. बट अगेन इन पर्टिकुलर सीजन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आइसक्रीम. इन विच सीजन जनरली देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आइसक्रीम्स? समर सीजन में ज्यादा आइसक्रीम की डिमांड रहती है, राइट. सो समर सीजन में आइसक्रीम का डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए. हाँ स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है, तो
उनको समर सीजन में प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो समर सीजन में उनको एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, वी कॉल दैट वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज दैट? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुआ? जो पर्टिकुलर सीजन में ही चाहिए वो वर्किंग कैपिटल को हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एंड जो वर्किंग कैपिटल थ्रू आउट द ईयर चाहिए वी कॉल इट एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थ्रू आउट द ईयर वर्किंग कैपिटल चाहिए ही, क्योंकि नहीं है वर्किंग कैपिटल तो प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसा नहीं है, तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन रन होना है तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना ही है। वी कॉल दैट एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ओके। Apart from throughout the year, in certain seasons, some of the companies need more working capital. That working capital we call as temporary working capital. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को है ना, अम्ब्रेला को डिमांड ज्यादा कब रहता है? रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में उनको ज्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तो तब उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। बाकी सीजन में थोड़ा आराम से मैन्युफैक्चर करेंगे, तब सिर्फ परमानेंट रहेगा तो काफी है। ओके, आई ड्रॉ वन डायग्राम हियर, जस्ट राइट डाउन and just tell me which is the permanent working capital and which indicates the temporary working capital. Okay. So if you can see the screen, okay, all of you can see the screen, I guess. Okay, now dear students, say for example this line indicates, है ना, थोड़ा economics वाला diagram बना दिया देखो मैंने, this line indicates production. ओके, समझो कंपनी ने पहला 1,100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, देन दे मैन्युफैक्चर 200, देन दे मैन्युफैक्चर 300 यूनिट्स, then 400, then 500, like this they are manufacturing. Okay, so this is their manufacturing cycle. ठीक है, लास्ट में मैंने 500. Okay. Now, to manufacture 100 units or to manufacture 500 units, throughout the year, उनको एक working capital maintain करना ही है student, right? हाँ, so that working capital we call it as permanent working capital. Clear बच्चों? So ये जो line है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? Permanent working capital. It is also known as fixed working capital. क्योंकि इतना working capital चाहिए ही, ये नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो दिस इज परमानेंट। ओके, नाउ इफ यू सी द सेकंड डायग्राम बच्चों, आफ्टर परमानेंट, फिक्स तो चाहिए ही सबको, आफ्टर परमानेंट, आफ्टर दिस फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिमांड, सीजनल डिमांड, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल ऊपर नीचे होता है। दिस वी कॉल एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, और इट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल, जो अकॉर्डिंग टू सीजन इट वेरीज। सो दिस इज temporary. Hope with this diagram what is permanent, what is temporary, सबको clear हो गया? So permanent working capital is that working capital which should be there in the company throughout the year. Temporary is that according to the demand the working capital requirement changes. सबको ये दोनों क्लियर हो गया? What is gross net working capital, permanent and temporary. Now let us move on the third one. Okay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, वेरी सिंपल बच्चों। व्हाट इज अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल? मैंने आपको बताया नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आता है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल? CA माइनस CL, है ना। व्हाट इज CA? करंट असेट। व्हाट इज CL? करंट लायबिलिटी। समझो एवरीवन, करंट असेट था मेरा 5 लाख और करंट लायबिलिटी था 3 लाख। ओके, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 लाख। नाउ समझो और एक एग्जांपल, CA माइनस CL,
Now for some time what will happen, करंट असेट कम रहेगा कंपनी में 3 लाख, लेकिन बिल्स के ऊपर बिल्स आ रहा है, ओके तो बिल्स बहुत ज्यादा है, तो करंट लायबिलिटी है 6 लाख। तो मेरा आंसर क्या रहेगा बच्चों, current asset minus current liability, I'm getting how much, minus 3 lakh, and how much I got here, plus 2 lakh. So what is this 2 lakh now, everyone? We call this 2 lakh as पॉजिटिव पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, है ना। व्हाट इज दिस माइनस 3 लाख, मेरे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, नेगेटिव हो गया। हाँ, दिस इज वेरी सिंपल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। सो कंपनी ऑलवेज टारगेट व्हाट बच्चों, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। जब कंपनी का सिचुएशन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आता है, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, बिल्स को आ रहा है, बिल्स के ऊपर बिल्स आ रहे हैं, उसको पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है। So negative working capital is very dangerous situation for the company. Every company always targets to have a positive working capital. क्योंकि नेगेटिव रहता है, कंपनी को प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगा या थोड़ा टाइम गैप लेना पड़ेगा। आफ्टर वंस दे रिकवर देन दे मे हैव टू रन देयर बिजनेस। ओके, सो द होप दैट इज क्लियर बच्चों। पॉजिटिव नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्लियर हो गया। नाउ लास्ट वन, लास्ट टाइप, बैलेंस शीट एंड कैश वर्किंग कैपिटल। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज अ बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल? व्हेन वी कंसिडर करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जितना बुक वैल्यू है उसके हिसाब से करंट असेट करंट लायबिलिटी कंसिडर किया और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, तो दैट वर्किंग कैपिटल वी कॉल एज बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ व्हाट इज कैश वर्किंग कैपिटल? हम बुक वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि बुक वैल्यू में बच्चों हमने प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है। सो जब हम बुक वैल्यू नहीं लेते हैं, ओके, सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, मतलब प्रॉफिट छोड़ के सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पे हमने डेटर्स लिया, स्टॉक लिया। सो दैट कॉस्ट बेसिस पे हम जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कैश वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, सिर्फ इतना लिख के रखो, काफी है। व्हाट इज द बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल? दैट वर्किंग कैपिटल which is calculated based on the book value available in the balance sheet. What is a cash working capital? And working capital which is calculated based on the cost of the current asset, not based on the book value, where cost means not considering the profit. Without considering the profit, only cost is taken into consideration. That is cash working capital. Okay, so dear students, अभी तक जो हमने पढ़ा क्लियर हुआ रहेगा। We have studied what is working capital, everyone clear? What are the types of working capital, सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको hopefully it is clear. I'll give you 2 minutes time if there is any doubt. Okay, nature of business का मतलब क्या होता है? Whether you heard about the various type of business which the company conduct. Okay, for example, I'll just give you one example. There are certain companies, we call them as manufacturing companies. Okay, manufacturing companies. Now, there are certain companies, we call them as trading firms. Okay, there are certain companies which we call them as service sectors. Okay, now students, all these sectors are different, correct? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करता है बच्चों? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, करेक्ट? एंड ट्रेडिंग सेक्टर्स क्या करता है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है क्या? कैन एनीवन टेल मी ट्रेडिंग कंपनी क्या करता है? फर्स्ट, any one of you, which is a service firm which are not manufacturing any product, which are not trading any product,
what they are doing, they are just providing the service. For example, education unit institution is a service firm, hospital is a service firm, right? All these are just hotels, right? Restaurants, they are, all these are service sectors. ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं या ट्रेडिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये तीनों कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगा. इसमें से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा किसको रहेगा? Which company will have more working capital requirement compared to the other two companies? Fast. Manufacturing. Manufacturing, very good Lokesh. Why manufacturing companies need working capital? क्योंकि उनको प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके आना है, प्रोडक्शन करना है, लेबरर्स को पे करना है, प्रोडक्ट करके फिनिश गुड्स को गोडाउन में रखना है, गोडाउन का रेंट पे करना है, देन गुड्स को भेजेंगे, बाद में पैसा मिलेगा. So manufacturing firms need more working capital compared to trading and service sectors. So exactly what I am trying to say, the nature of business will decide the working capital requirement. All companies will not have same working capital because it depends on their nature of business, what kind of business they are conducting. Hope that is clear. Now, second and third, size of the business. First, let us see second one, size of business. Whether it is a matter, definitely, है ना? Company बड़ा है, long, large business है, then working capital requirement will be more or less. Fast. When it, yes, more. When the companies, companies of large scale manufacturing company, large scale trading company है तो size बड़ा है कंपनी का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. कंपनी छोटा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. ओके, नाउ थर्ड वन, सीजनल डिमांड. वेरी इंटरेस्टिंग, अभी हमने डिस्कस किया है ना, जो कंपनीज को जो सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए या ज्यादा डिमांड रहता है, वो सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. जो कंपनी को सीजन का फर्क नहीं है, सारे सीजन में डिमांड सेम रहता है, तो उनको सीजनल का कुछ इफेक्ट नहीं होता है. दे शुड हैव अ सेम वर्किंग कैपिटल थ्रू द ईयर. ओके, सो होप दैट सीजनल डिमांड इज क्लियर. नाउ फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल. इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगी. व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट आप पॉइंट्स लिखते हैं, ये पॉइंट लिख के रखो, ठीक है? Then just remind me, we will discuss about operating cycle of the firm later. Now, credit terms, very interesting and very important. Please understand. Can anyone tell me what is a credit term? So, what is credit means the terms or the number of months. Okay, number of months which are time period given by the क्रेडिटर्स और आर सप्लायर्स, है ना, उनसे हमने गुड्स लिया था, उन्होंने हमें टाइम दिया है, वो जो टाइम देते हैं वो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट टर्म्स बोलते हैं. ओके, हमें सप्लायर्स टाइम देते हैं और हम लोग किसको टाइम देते हैं, बोलो, पेमेंट करने के लिए? एग्जैक्टली, हम लोग कस्टमर्स को टाइम देते हैं. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली, जब हमें सप्लायर्स पैसा देने के लिए ज्यादा टाइम दिया तो, ओके, जब हमारा सप्लायर्स हमें पैसा देने के लिए ज्यादा टाइम दिया तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन. When our suppliers are giving us more time period to make the payment, our working capital requirement will be less or more? Fast. More. More? Yes. पक्का? Little bit confusing है ना? हाँ, the answer is wrong. Why I will tell you. See, हमें सप्लायर्स ज्यादा टाइम दिया है, मतलब वो बोल रहा है भाई अभी तू पे मत कर, 4 महीना में टाइम दे रही हूँ, 4 महीने के बाद पे कर. मतलब क्या हुआ, 4 महीना हमारे पास हमारा पैसा रहेगा, राइट? हमारा पैसा मीन्स व्हाट, हमारा वर्किंग कैपिटल. सो वो टाइम पे हमें और एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा.
वही समझो सप्लायर बोल रहा है मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक ही महीने में तुम्हें पे करना है, तो क्या होगा, विद इन 1 मंथ वी नीड हैव टू पे आवर सप्लायर्स, हमारा कैश खत्म हो गया क्योंकि हमने सप्लायर्स को पे किया, तब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. होप आई एम क्लियर इन दैट पॉइंट. सो whenever our suppliers give us more time, we are having relaxation, we can relax a bit, we are having to that particular time we have our own cash with us, so हमें working capital requirement कम रहेगा. वही suppliers ने हमें कम टाइम दिया, वो लोग सर पे खड़े हैं पे करो बोल के, तब हमारा working capital requirement ज्यादा रहता है. Hope I am clear with that point. Yes students. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. हाँ, वही अभी उल्टा सोचो, कस्टमर्स. ओके, कस्टमर्स को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं पे करने के लिए. ओके, भाई तू आराम से पे कर, अभी 4 महीना नहीं तुझे 6 महीना देता हूँ, तो आराम से पे कर. तब हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? फास्ट फास्ट. हमने कस्टमर्स को ज्यादा टाइम दिया तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? somebody said ज्यादा रहेगा. करेक्ट, क्योंकि हमारे पास 6 महीना पैसा नहीं आ रहा है, वो तो आराम से पे कर रहा है, तो 6 महीना हमारे पास कुछ ना कुछ कैश चाहिए बच्चों बिजनेस चलाने के लिए. तो दैट 6 months वी नीड आवर ओन वर्किंग कैपिटल विद अस. सो कस्टमर्स को हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. कस्टमर्स को हम कम टाइम दिया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा. आपके अभी दिमाग में आ सकता है तो हम क्यों कस्टमर्स को ज्यादा टाइम दें? ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस आपको अच्छे से चलाना है, अपना कस्टमर्स को रिटेन करना है, तो हमें उनको ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव ए प्रॉपर वर्किंग कैपिटल इन आवर हैंड. बैलेंस करना कंपनी को वेरी इंपॉर्टेंट है. वर्किंग कैपिटल भी रहना है प्लस कस्टमर्स को भी मैनेज करना है. सो दैट इज नोन एज क्रेडिट टर्म एंड द इफेक्ट ऑफ दैट इज ऑन वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली. होप दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स. सो आज हमने 4 फैक्टर्स एज ऑफ नाउ डिस्कस किया है. बाकी का फैक्टर्स नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे, आज मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी. एंड ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके वर्किंग कैपिटल का थ्योरी पार्ट में खत्म करूंगी नेक्स्ट क्लास में. ओके, hope that is clear students. Any doubt if you are having, you can ask me the doubt or else I can wind up the class.